Rajat, one of the finest batsmen to play those reverse sweeps for the Goa Premier League. This time, just cut it away for the single. Getting Dinesh on strike, the left-handed batsman. A great support for Bhumika Kanka from Dingra. A very good delivery and good keeping there. Just a single in these three deliveries. Good bowling from Vinayak. Not allowing batsman to free his arms. But this time he punishes. 6 for Danesh. So with the 6 the score moves to 7 runs. Nicely flicked it onto the leg side. He has received 2 men of the series in 2 different tournaments. And he is in red hot form. Once again swing and a miss. A good comeback from Vinayak after getting hammered for that 6. A short delivery. Traveling towards the fans for 4 runs. So end of the first over. The score is 11 runs. Of Sulla, kindly report to the panel. We are putting the next round on lots. So kindly come over here. We have 12th man of Bhumika Kanka over here. If possible, 12th man of Mansion Boys can come here. If they have one. So in the first over the score is 11 runs and the new bowler Ashwish. First ball of Ashwish, chance of a catch and it takes it comfortably. The first wicket down for Bhumika Kanka. The dangerous looking batsman Rajat departs here.
versus ये कौन Siddhi Vinayak Sulla. Winners of this match will be playing the winners of Shanta Durga and Siddhi Vinayak Sulla. The next matches will be played of 4 overs each. All team captains kindly make a note of this. So Ashwin is striking with his very first delivery, that too getting the wicket of Rajat. Edge and straight. It was the edge. It was a very good shot straight to the fielder. And what a catch taken there. So two consecutive wickets falling down for Vedant going on that golden duck. Two consecutive wickets falling off, two consecutive deliveries bowled by Ashwesh. Score remains 11 runs. The new batsman in Mahesh. Chance of a hat trick. Going for the reverse. Great bowling there by Ashwesh. No runs conceded with two big wickets. A slower one, but way down the leg side. White ball called by umpire Siddesh. So with this wide delivery, the score moves to 12 runs. It's a dead ball. Batsman wasn't ready. Dead ball called by Siddesh. A short delivery. Chance of a run out. Good running between the wickets by Danesh and Mahesh. A very quick single taken. So with this single, score slightly moving ahead to 13 runs. Two more deliveries left in this over. So far it has been a very good over, economical over from Ashwesh. There's a fielder underneath it and takes it comfortably. So 3 wickets in this over. What an over it has been for Mansion Boys. 3 wickets have been taken in this over.
Can he pick up the fourth wicket in this over? Played it down the leg side just for the single. Ajay will be keeping the strike for the next over. So with this single, the score moves to 14 runs. End of 2 overs, the score is 14 for loss of 3 wickets. High up in the air, chance of a catch. And takes it comfortably. So 4 wickets down for Bhumika Kanka. Rohan was the fielder. Succession over here. That's what Mansion Boys wanted. Where is Digra gone now? Can't hear his voice. Second delivery or dot delivery. A very good delivery again. Yorker and delivery. So 3 consecutive dot deliveries with that wicket. A great bowling shown there by Mansion Boys. Ashwish was the one who started taking wickets. Pulled it. Might be catch. He drops that one. 4 runs declared. Touching the boundary line while making an attempt to save that 4 runs. So a lifeline has been given to this batsman. Ajay. So with this boundary, the score moves to 18 runs. Just a single. So with the single, the score moves to 19 runs.
Just reminding you all, Ajay has been dropped here. He can be dangerous, changing the field setting for Siddesh Bhau. This time a short delivery straight to the fielder, chance of a run out, but fielder fumbles there. So a very quick single taken. So end of 3 overs, the score is 20 runs for loss of 4 wickets. No ball called by umpire. Free hit. Swing and a miss. It was a free hit. Siddesh had full advantage to convert that shot, but misses it completely. Once again swinging. He's been injured, I guess. Udak, bowlers, kindly take water. Kindly run with the water inside. Umpires, kindly check whether he's fine. Ice, ice. I think Siddesh has been injured badly. Requesting someone from the organizing committee to kindly go onto the pitch or the ground to have a look. Requesting someone from the organizing committee kindly go onto the ground to have a look at the injury. I think the ball has hit Bhau's eye here. Hope he's fine. Score remains on 21 runs. First delivery was the no ball. Then Bahu missed the chance of a free hit and then a dot delivery. A very big hit, 6 runs.
So 3 deliveries have been bowled. The score moves to 27 runs. The new batsman Anukul starting with that 6. To the field and is gone. Bhumika Kanka had some hopes on Anukul, but he departs with the only 6. अरे त्याच्या फुडल्यो रे बाबा ऐक रे सारको आताचे 5 चालले फुडल्यो 4 रे माझा आवाज क्लिअर ना मायकाचेर बीन नाही विचारता रे A short delivery misses the chance. Oh, it's white ball called by umpire Satish. So with this white delivery, the score moves to 28 runs. We are searching for Digra. A very good Yorker and delivery straight to the fielder. No runs considered there. Good bowling by Rohan. Score is 28 runs. Straight to the fielder. Dot delivery. Very good over there by Rohan. So end of 4 overs. The score is 28 runs for the कितले विकेट रे loss of 5 wickets. We have with us our scorer Akil Parab. He's here since morning 7 o'clock. बॉलर The new bowler Rudresh. The final over of this first inning. Rudresh, popularly known as Rudy. A short delivery, chance of a catch. And he has given it for the 6 runs. It would have been a boundary, but unfortunately bounces on his hands and travels all the way out of the fence for 6 runs. Again, edge and out.
44 to win. 44 runs to win. नाव इथं मसो इतने में उनको उस रनों का रक्षण करने वाली गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फिलहाल स्ट्राइक पर दो बल्लेबाज अश्वेश और रोहन ये जोड़ी, और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रज्योत ये गेंदबाज 4 नंबर की जर्सी। 44 रनों की आवश्यकता। पहला और पावर प्ले का बेस्ट बॉलर ऑफ द एसके जॉकी टूर्नामेंट में शानदार 10 विकेट चटकाए थे इस गेंदबाज ने, प्रज्योत ने। और अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन, सही सटीक दिशा, निशाने के ऊपर थी गेंद। और ये जब यॉर्कर आपके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है, इसके ऊपर बल्लेबाज को खामोश रखने की क्षमता हर एक गेंदबाज देखता है। और हमेशा यॉर्कर सटीक अगर हो जाए तो बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं होता। शानदार गेंदबाजी। प्रज्योत की शुरुआत तो अच्छी रही है इस ओवर के, देखना है आगे जाकर किस तरह से गेंदबाजी हो जाती है। ओ ये हवा में शायद शॉट एक्स्ट्रा कवर पर थोड़े से दूर खड़े थे खिलाड़ी, शायद 1 रन के साथ अपना खाता खोला, खुद का खाता खोला। सिद्धिविनायक शुर्ला और शांतादुर्गा क्रिकेटर्स अस्नोड़ा दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। ये मुकाबला 4-4 ओवरों का रहेगा, ये दोनों कप्तान ध्यान दे। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। सिद्धिविनायक सुरला और शांतादुर्गा क्रिकेटर्स अस्नोड़ा के कप्तान। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब रोहन स्ट्राइक पर सावधान करेंगे प्रज्योत की अगली गेंद का। इस मैदान पर रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और इस बार काफी बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, जिसे पंजाब टू हरियाणा ऐसा कहा जाता है। अतिरिक्त रन के साथ खाते में बढ़ोतरी, टोटल पहुंचा 2 रन बगैर किसी नुकसान पर। नॉकआउट के मुकाबले जीतने वाली टीम कल फाइनल में, जो कि उसको मिलेंगे नगद राशि 1 लाख रुपए, चमचमाते हुए ट्रॉफी, और रनर अप्स को मिलेंगे नगद राशि 50,000। फुल टॉस गेंद, लेकिन ये देखिए क्या शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले को लगी, उसके बाद पैरों के ऊपर लगी, और जिस तरह से दर्द से करा रहे हैं बल्लेबाज,
उससे पता चलता है कितनी तेज गेंद आई थी। गेंद उतनी तेज आई, बल्ले को लगने के बाद और तेजी प्रदान हो गई, और जिसके चलते हुए थोड़ा सा टाइम मिस कर बैठे और 1 रन तब तक पूरा हो गया। दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। टोटल पहुंचा है 2 रन। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। शांता दुर्गा won the toss and elected to field first. ओ इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अगर गेंद छोड़ भी देते तो शायद ये गेंद वाइड हो जाती, लेकिन जो अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश कर दी, वहां पर बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी और सेकंड स्लिप के नजदीक उसको फील्ड कर दिया गया। कोई रन नहीं निकला, मेडन गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 2 रन। ओ इस बार आपने स्टांस अपना चेंज कर दिया है तो आपको वाइड नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जिस तरह से आपने बल्ला पकड़ा था राइट हैंडेड बल्लेबाज से आप लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बने, और गेंदबाज के लिए ये मौका रहता है ऐसी गेंदबाजी का। ये 2 गेंदें काफी मायने रखेगी। ये 2 गेंदें जाया गई, बिंदी निकले, टोटल वहीं पर रुका हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान पर। क्या पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, क्यों इन्हें एसके जॉकिंग का बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये दर्शाता वही खिलाड़ी इस मैदान पर बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व अपने टीम के लिए करता हुआ। आगे निकले थे खेलने के लिए, दूर से खेल बैठे, 1 रन के लिए निकले, रनआउट का मौका शायद, लेकिन पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। पहला ओवर समाप्त, नपातुला ओवर। इस ओवर में निकले सिर्फ 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। 44 रनों के जवाब में अब बचे 24 गेंदे और 41 रनों की आवश्यकता। बोर्ड पर पहले ओवर का खेल समाप्त। 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 24 गेंदों में और 40 रनों की है आवश्यकता। मैच बनेगा, इसमें कोई दयरा नहीं, क्योंकि इस मैदान पर जिस तरह से वातावरण बन चुका है ना, तो रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ते हैं। आसान जरूर लगता है छक्का लगने के बाद, लेकिन सेट होने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी समय गुजरा जा रहा है, अंपायर से हिदायत है जल्द से जल्द थोड़े से आप सूचना करें फील्डरों को कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। गेंदबाजी में धनेश आउटे, ये गेंदबाज दूर वाले छोर से। सामना करेंगे अश्वेश, फुल टॉस गेंद और खड़े खड़े खेला स्ट्रोक। ये तो भाई तोहफा, गेंद निकली सीमा पार, 6 रन। रन पर, और ऐसे कम टोटल के मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा। पहली गेंद के ऊपर जब छक्का लग जाता है ना, तो वो और बड़ा होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बल्लेबाज का बल्ला आने से पहले गेंद विकेट कीपर के हाथों में समा गई और एक डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। वापसी करना जानता है धनेश। ओ फिर एक बार बैक टू बैक बिंदी गेंदे, लगातार 2 गेंदे। पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर जड़ा है, लेकिन इन 2 गेंदों के ऊपर जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। शानदार गेंदबाजी। और इस बार उठा दिया, खोद कर निकाले हुए। दूरी कितने है, जितने चाहिए उतने है। गेंद निकलते हुए सीमा पर 6 रन के लिए।
जो 2 गेंदें बिंदी निकली थी उसको मेंशन कर दिया मेंशन बॉयज के इन बल्लेबाजों ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फिर एक बार बैक टू बैक, जिस तेजी से आए उस तेजी से निकली, 6 रन। के लिए 3 छक्के अब तक इस ओवर में लग चुके हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 22 रन पर। आधा फासला तय हो चुका है, आधा सफर तय हो चुका है, आधा सफर करना बाकी है। लेकिन शानदार बल्लेबाजी आश्वेश द्वारा इस मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद, ब्लॉकल में डाली, यॉर्कर लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। लेकिन इस ओवर में ज्यादा रन, 3 छक्के निकलने की वजह से 2 ओवरों का खेल समाप्त और 22 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल बाकी है और 22 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच की अगर बात की जाए तो चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजों को, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करते और जब जब चमत्कार हुआ है तब तब उसे युगों युगों तक याद रखा गया। हम हमेशा कहते हैं चमत्कारों को नमस्कार करने वाले इस दुनिया में चमत्कार करना पड़ेगा। देखना है गेंदबाजी का मोर्चा किसके हाथ में थमा दिया जाता है। और गेंदबाजी के लिए महेश ये गेंदबाजी के मोर्चे पर 18 गेंदे 22 रन। यहां से अब क्या होगा, एक आध विकेट की आवश्यकता। ये खतरनाक पारी जो कि बन रही है, साझेदारी बन रही है, उसमें उस पारी को तोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन मेंशन बॉयज के बल्लेबाज क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर, अपने टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं यहाँ हल्की सी गलती इस प्रतियोगिता का द्वार खुद के लिए बंद करने वाली होगी और उस गलती को सुधारने की कोशिश बार बार लगातार करते हुए मेंशन बॉयज। और इस बार उठा कर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, क्या कैच का मौका है? गेंदबाज गेंद के नीचे और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट निकलती हुई। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज निकले वापस, रोहन चलते अपने। निकला 22 रन स्कोर बोर्ड पर। आधा फासला जो कि तय हो चुका है, आधा फासला अभी भी बाकी है और नए बल्लेबाज नीलेश मैदान पर 1 डाउन की हैसियत से। आते आते महेश ने विकेट जरूर निकाली है लेकिन अभी भी फासला बहुत दूर है। क्या मैच में बहुत कुछ छुपा है, कांटे का होगा, शायद एक आध 2 विकेट जल्दी निकल आए, वरना एक आध और बड़ा शॉट लगा तो मैच पूरी तरह से मेंशन बॉयज के खाते में चला जाएगा। और देखना है क्या होगा। निकले महेश गेंदबाजी के लिए ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से और वाकल में यॉर्कर लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर इस बार खेल दिया मिडान के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड कर देते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 23 रन पर। प्रज्योत ने अच्छा ओवर डाला था, पहला ओवर सिर्फ 4 रन दिए थे लेकिन उसके बाद धनेश आवटे का ओवर, उसके ऊपर मानो जहां पर बिजली गिरी हो इस तरह के बल्लेबाजी। 3 लंबे छक्के देखने को मिले आश्वेश के बल्ले से। अब देखता है महेश का सामना किस तरह से करते हैं आश्वेश अपने बल्लेबाजी में। 23 रन टोटल, 21 रनों की और आवश्यकता। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक छक्का। गेंदबाज कोई है, कौन है ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बल्ला जब चलता है, दिन जब मेरा होता है तो सामने वाला गेंदबाज कितना भी बड़ा हो मैं उसके ऊपर धावा बोलूंगा और यही सोच है आश्वेश के मैदान पर। छक्के के बदले टोटल पहुंचा 29
सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक शायद निश्चित रूप से, जो कि तीनों गेंदों के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करी लेकिन तीनों गेंदें जाया गई। जब सीधे बल्ले से रन निकल रहे हो तो ये अतिरिक्त प्रयास को क्यों कर रहे हैं, ये ना समझने वाली बात जरूर है। लेकिन आजकल हर एक टीम में हर एक खिलाड़ी रिवर्स अटेम्प्ट के लिए जाना जाता है, रिवर्स स्विच हिट के लिए जाना जाता है। किसी को सफलता मिलती है लेकिन कोई तो असफल हो ही जाता है। लेकिन महेश फिर एक बार भगवान को याद कर रहे हैं जिनका जर्सी का नंबर है 15 और जीतने के लिए रन सामने वाले टीम के लिए भी चाहिए 15 और इनको बचाने हैं वो 15 रन। और इस बार खेलते हैं इस बार बल्ले से कांटेक्ट हुआ, गेंद निकले, वन बाउंस से मारे का बार 4 रन के लिए। लास्ट बॉल बहुत ही खराब गेंदबाजी, शायद ऐसा लग रहा था कि पहले 2 ओवर में 2-3 विकेट अगर निकल लेते तो शायद ये भूमिका 11 की टीम वापसी कर सकती थी। लेकिन आश्वेश की क्या शानदार बल्लेबाजी, छक्कों में डील कर रहे हैं, चौकों में डील कर रहे हैं, किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दे रहे मैदान पर। ओ इस बार चुके, फिर एक बार, चौथी बार चूंकि रिवर्स अटैम्प में ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त, 12 गेंदों का खेल बाकी है। टोटल यहां पर पहुंचा है 33 और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों का खेल है बाकी। सिद्धेश उर्फ भाऊ गेंदबाजी जो जख्मी हो चुके थे, थोड़े से घायल हो चुके थे लेकिन अपने टीम के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आए हैं। अब 12 गेंदे 11 रन, कोई चमत्कार हो इस मैदान पर, लेकिन नहीं, चमत्कार तो नहीं होगा। आज का दिन ही पूरा है मेंशन बॉयज टीम का। गेंद निकलती हुई सीमा पर 6 रन के लिए। तो शायद मैच पूरी तरह से गिरफ्त में कर लिया मेंशन के। अगला मुकाबला तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ओ मैच समाप्त होता हुआ शायद इस छक्के के साथ मैच हुआ समाप्त। विकेट और बल्ले